Very good afternoon, students. Hope everybody is fine. It's 1 o'clock. बहुत लोगों ने या तो लंच कर लिया है या लंच का प्रिपरेशन के लिए ही क्लास नहीं है ना? तो अब from today onwards, what I'm going to do is, from today onwards, in the last period, we'll have attendance. Okay, 4C and 4A की attendance last period में होंगे, so that those who don't do the classes, those who are not in habit of, those who are in habit of not doing the last class, they will not be given the attendance. Because time and again is being said, come to the class. Hey now, because in the first period, I saw that in 4A, 4B, 4C, there were 83 students, and it is the last class of today's, and we have got till now 23 students. Where are those 860 students gone? Gone for lunch? तो ये कल से जो आप लंच करेंगे 1-1:30 बजे के बाद करेंगे, ठीक है ना? ब्रेकफास्ट करने के बाद 1:30 बजे घर पहुंच के हम 1:45-2 बजे तक ही लंच करते थे, है ना? तो कल से लंच हम लोग मेरे क्लास के बाद करेंगे, ठीक है? Okay, yesterday we were doing the revision of lesson 8, isn't it? That was conservation. What are scarcity and conservation of water? थोड़ा सा उसको रिकैप करते हुए आगे बढ़ते। चलो, मेरे साथ अभी अनम्यूटेड रहेगा शिवांश श्रीवास्तव। शिवांश, अनम्यूट करो अपने आप को। Yes, ma'am. Okay. Yesterday we did the revision of water scarcity and conservation of water. एक क्वेश्चन का जवाब है, what is the responsible? Can you tell me the 3 factors that are responsible for scarcity of water on the earth? 3 factors that are responsible for scarcity of water are deforestation, population, and setting up of factories. Setting up of factories. Can you define the term deforestation? What is deforestation? Cutting of trees in forests is called deforestation. Cutting off of trees in forests? No, not like that. We call cutting off of trees in large scale. क्या केवल forest में काटना ही deforestation होगा? No. When we cut the trees on a large scale, we call it deforestation. Okay, Smriti Jha. Unmute yourself. How does setting up of factories affect the groundwater level? How does the setting of factories affect the groundwater level? Because But we never when begin, we never set start. the factory, Bolu, you started the answer with because. So I was, I wanted to give a stopple to it. We never start any sentence with because. Because are the conjunctors, connectors. They connect 2 of the sentences. The way is the first one. We should never start any sentence with because. ठीक है ना? हम कभी कोई sentence because से शुरू नहीं करते, है ना? That is why I said. Okay, the question is, how does setting up of factories affect the groundwater level? the factories need a large quantity of water. They fulfill need by using groundwater. Yes. Due to shortage of rainfall, groundwater level becomes down. Are you reading from somewhere, Smriti? If I have got learned, then why you are fumbling like this? Why giving so many stopples? Factories need a large amount of water. So many factories being set up, they will need more of the waters. And they need this water, they get the requirement fulfilled by the groundwater. Since there is less of rainfall, this groundwater level is not fulfilled. The quantity is not fulfilled as much it was used. So it affects the groundwater level. Okay. Last question. Jia Singh. Yeah. Jia. How should the field be? Yes, ma'am. How should field be irrigated to reduce wastage of water? To reduce
the to reduce wastage of water, irrigated Field should be irrigated with manual sprinklers and automatic sprinklers. Okay, to reduce the wastage of water, field should be irrigated with either manual sprinklers or the automatic sprinklers. Mute yourself. Okay, so this was all about the last chapter. Today we'll start a new chapter, revision of the new chapter, and that is safe handling and storage of water. So it continuity to what we studied in the last chapter. Last chapter was scarcity of water. पानी की scarcity हो गई है and we have to conserve it. तो जो पानी है, now the time comes, जो पानी हमारे पास है, we need to safely handle it, है ना? हमें उसकी देखभाल अच्छी से करनी है, उसकी हैंडलिंग अच्छी से करनी है कि जो पानी है वो भी खराब ना हो जाए, है ना? वो भी बर्बाद ना हो जाए, और उसका स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए, है ना? The water which is there, we have to store it properly and we have to handle it properly. Now, which water is said to be potable water? इसमें एक पहला टर्म आता है पोर्टेबल वाटर. हम ये पढ़ चुके हैं. अनायता कुमारी, unmute yourself and tell me what do you mean by the term potable water? Anayata, are you there? But water which we drink, water which fit for drinking, and water which fit for drinking are called potable water. Fit for drinking. It should not be clean. Yes, ma'am. Okay. The water which is clean and fit for drinking, जो पीने लायक है, जो साफ है, we call them a potable water. The water which is clean and fit for drinking is called potable water. Sanskriti Yadav, unmute yourself. अगर पानी गंदा है, if the water is not clean, what are the methods being used to clean this water, to purify this water? Filtration and boiling. Okay, only these two. Everybody look at the face of Sanskriti, how she's making. संस्कृति, अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है तो आद्या का चेहरा देखो, वो तुम्हें देखे कैसे मुंह बना रही है. जस्ट हैव अ लुक. हम सभी तो तुम्हें देख ही रहे हैं, अब आद्या को भी लोग देखेगा. आद्या देखो, अपने मुंह पे पूरा हाथ रखी हुई है तुमको देख के. दिख रहे हैं? दिखा? अब देखो, दिख रहा है सबको? And Adya is not in uniform also. Adya, क्या हो गया? Why you are not in school uniform? बोलो. Unmuted हो? बोलो. बहाना सोच रही है. She is thinking of excuse. चलो, mute कर दिया. Sorry. So, the methods of purification of water. Sanskriti, तीनों methods बोलो जल्दी से. Yes, ma'am. What are the three methods of purification? Garima Singh Girwal. Garima, ध्यान दो. What are the three methods of? हाँ ma'am. What are three methods of purification of water? जो बोलो. संस्कृति नहीं, गरिमा बोलेगी. Ma'am, boiling. Okay. Filtration. Chlorination. अच्छा, हमें ये वाटर को प्यूरिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? वाटर में क्या है ऐसा जो वाटर गंदा है? It needs to be purified. Ma'am, dust and germs. Okay, so water is not purified if it contains dust, if it contains germs, if it contains dirt. D-I-R-T dirt and D-U-S-T dust. Dust मतलब धूल, dirt मतलब गंदगी. And germ मतलब कीटाणु. Sanskriti, right? Yes, ma'am. I was copying you. तुम ऐसे ही कर रही हो, इसीलिए तुमको कॉपी किया.
है ना संस्कृति? गरिमा को दिख रही है संस्कृति? नहीं दिख रही है ना, क्योंकि मोबाइल में वो मुझे नहीं देख पा रही है। तो कभी कभी सॉल्व करके तो संस्कृति का भी चेहरा देख लिया करो कि जैसे वो क्लास में चेहरा बनाती है वैसे ही यहाँ भी बना रही है। ओके चलो, सो वाटर को प्यूरिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज वाटर इज नॉट प्योर, वाटर इज नॉट पोर्टेबल। क्यों पोर्टेबल नहीं है? यानी हमने वाटर को प्यूरिफाई पोर्टेबल कब कहा है? वाटर तब पोर्टेबल है व्हेन इट इज क्लीन एंड व्हेन इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्लीन कब होगा? जब उसमें गंदगी नहीं होगी, व्हेन देयर विल बी नो डस्ट एंड नो डर्ट। दो वर्ड्स को ध्यान रखो, water which contains dust, which contains dirt and which contains germs, they are said to be unclean water. तो हमें वाटर को प्यूरिफाई करना है, हमें वाटर से ये तीनों चीजें हटानी है। तो हाउ वुड वी डू इट? ठीक है, तो if it contains dust it is impure, if it contains dirt it is impure, if it contains germs it is impure. So water has to be purified, water को प्यूरिफाई करना है। How would we do it? तो there are 3 methods of purification of water. ठीक है, फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग। हर के घर में मम्मा करती है। मान लो घर का प्यूरिफायर खराब हो गया, एक्वागार्ड खराब हो गया, आरओ खराब हो गया, तो मम्मा पहला काम क्या करती है? पानी को उबाल के पिलाती है। कहती है कि वाटर को हम जब बॉईल करते हैं उनके जर्म्स जो है वो मर जाते हैं। सही है ना गरिमा? यस मैम। यस मैम। तो लेकिन उसमें डस्ट जर्म्स तो मर गए, लेकिन क्या नहीं गया? डस्ट। अगर उसमें कोई डस्ट होगा, अगर उस ममा ने उसे बॉईल करते वक्त ढका नहीं होगा तो उसमें जो डस्ट होगी वो नहीं गए। तो वाटर आफ्टर बॉइलिंग नीड टू बी फिल्टर्ड। तो हर के घर में छन्नी होती है। माँ को देखोगे, आपके घर में ममा अगर वाटर बॉईल करती है तो पतले से मलमल के कपड़े में पानी को छान लेती है ना? पानी को छान लेते हैं ताकि उसमें कुछ डस्ट होगा तो वो निकल जाएगा। तो तब तक पानी प्योर नहीं है जब तक उसके अंदर के डस्ट एंड जर्म्स नहीं हो जाते। हम क्लोरीनेशन में, फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। लेकिन फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ओनली द डस्ट इज बीइंग रिमूव्ड, नॉट द जर्म्स, इजंट इट? जर्म्स तो नहीं जाते उसमें। अगर हम सिर्फ फिल्ट्रेशन करते हैं तो जाते हैं क्या? क्या नहीं जाते? नहीं, तो उसमें से जर्म्स नहीं जाते। तो वाटर नीड टू बी प्यूरिफाइड by boiling it followed by filtration. Chlorination is another method of purification of water in which a small amount of chlorine tablet is added to a water. Chlorine tablet added करने से क्या होता है? संस्कृति क्या होगा? अच्छा, संस्कृति से नहीं पूछते, बहुत देर से उसे पूछ रहे हैं इसीलिए वो ज्यादा मुंह बना रही है। इसको मैं भगाती हूँ। हाँ, अब मैं पूछूंगी आराध्य भारद्वाज से। आराध्य, मुझे तुम्हारा फैन दिख रहा है, तुम नहीं दिख रहे हो, सामने आओ। यस मैम। हाँ, what happens in chlorination? It's another method of purification of water. इसमें क्या होता है? It is a process of purification of water in the which a small amount of chlorination is added to the water. It is added to the water. Chlorination को ऐड कर दोगे? Chlorination तो प्रोसेस है, हम ऐड क्या करेंगे उसमें? Chlorine. Yes, we add a small amount of chlorine into it. क्लोरीन की खासियत क्या है कि पानी में जो भी जर्म्स है उसको मार देते हैं, है ना? लेकिन हमें लगता है, आपको क्या लगता है कि क्लोरीनेशन होने के बाद भी उसका फिल्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं? नो। गरिमा, क्या तुम्हें लगता है? यस मैम। एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्योंकि वो क्या रिमूव कर रहा है? जर्म्स को मार रहा है। फिर वो डस्ट नहीं रह जाता, डस्ट को नहीं हटाता। आपको जब क्लास से पढ़ाया गया था तब याद करें, आपको मैंने ट्रेडिशनल फिल्टर बनाया था, बताया था ना? पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल फिल्टर हुआ करते थे। 4 मटके होते थे, सबसे ऊपर वाले मटके में ग्रेवल रखा जाता था, सैंड, उसके नीचे चारकोल और उसके नीचे फिल्टर्ड वाटर मिलता था हमें। 3 लेवल से वाटर क्रॉस करता था एंड देन वी यूज्ड टू गेट दिस
filtered water, isn't it? ये water, Yes. this method of filtration generally पहले के लोग क्या करते थे, but this method of filtration was not absolutely suitable for drinking purpose. हम इसे suitable नहीं कहते हैं अभी के समय. क्यों नहीं कहते? कौन बताएगा? हाथ उठाएगा सिर्फ. Only raising your hands. Those who know this answer. This traditional method of filtration is not suitable for drinking. अभी हम इसको suitable नहीं कहते. क्यों? Can you tell me why it is not suitable? Virtually नहीं, आप on screen हाथ उठाओ. Let's see. Adanya हाथ उठाया. Very good. Garima, Adya, Yashashvi, Gautam. बोलो Yashashvi. Why the traditional method of filtration is not suitable for drinking water? It is not suitable for drinking water as it only removes the dust and sand and not the germs and suspended particles. नहीं बेटा, suspended particles को तो वो remove करता है. The traditional method of filtration is not suitable. I don't think it's very much suitable for drinking water right now, nowadays, because that method only used to filter what? The suspended particles, the dust, the dirt. लेकिन it was, मतलब उसमें अगर germs होता तो ये germs को नहीं kills कर सकता है. So far as अभी के समय का समय है, we call it that traditional method of filtration is not very suitable for making the water fit for drinking. अभी हमारे पास क्या है? We have got reverse RO system है. We have got AquaGuard जिसमें कि filtered लगे हैं, जो कि germs को भी मारता है और water को filter भी कहता है. तो हम कहते हैं अभी का filter, modern filters are more safe because it not only removes the dust and dirt, but it also kills the germs present in water, isn't it? कितने लोग कहते हैं यहाँ ये सही है? Yes, ma'am. सही है. Good. Okay. अब हो गई बात, हमने पानी साफ कर लिया, हमने पानी को पोर्टेबल बना लिया. इसके बाद एक टर्म पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने कि is there any need to avoid stagnation of water near a house? अभी हम लोग घर के बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, हम घर के अंदर ही हैं, बट बरसात के दिनों में क्या होता है, हमारे घर के अगल बगल we found stagnant water. What is the meaning of stagnant? पहले इसका मतलब जाने. कितने लोगों को पता है what is the meaning of stagnant? Who knows this answer? Who knows the meaning of stagnant? Arya Sinha, बोलो. मैम जमा हुआ. ठहरा हुआ, जमा हुआ पानी. आर्या सिन्हा के बदले तनीषा ने जवाब दिया क्योंकि अनम्यूट वो हो गई थी. आर्या सिन्हा सोचता ही रह गया और जवाब तनीषा ने दे दिया. यस, स्टैग्नेंट मतलब ठहरा हुआ पानी, जमा हुआ पानी. आप देखते होंगे बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में क्या होता है, वी फाइंड मेनी पिट्स बीइंग देयर ऑन द रोड. घर के अगल बगल रास्ते में बहुत गड्ढे मिलते हैं हमें. नॉट ओनली दैट, अभी हमारे घर के छतों में भी कोई मटका फूट गया, वो उसको हम लोग छत पे छोड़ देते हैं. कोई टायर फटा हुआ है, उसको फेंक दिया. दे ऑल आर द रीजन फॉर स्टैग्नेंट वाटर. बारिश हुई, उसमें पानी जम जाएगा. तो ये बहुत बड़ा रीजन है फॉर डिजीजेस कॉजिंग मस्कीटो, इजंट इट? किसने छींका इतना तेज? गरिमा, तेरी छींक यहां तक आ गई, मेरे घर तक. गॉड ब्लेस यू. बाप रे, इतना तेज छींक, मैं तो डर गई. ओके, गॉड ब्लेस यू. ओके, सो stagnant water is one of the reason for disease causing mosquitoes. मस्कीटो के तो बल्ले बल्ले है, उसे तो मिल गया पानी, अब वो क्या करेगा, वो उसमें ब्रीड करेगा, वो अपने छोटे छोटे अंडों को देगा, फिर वहां से अंडे से मच्छर निकलेंगे और फिर क्या कहना है, फिर कौन से रोग होंगे, कौन से डिजीजेस होगा. हर्ष, फिर आज सीरियस बैठा हुआ है लड़का, कभी तो हंस लिया करो. एकदम सीरियस मूड में बैठा है, कुछ नहीं बोलना है, सीधे बैठे रहना है. मम्मा ने बोला है क्या हंसना मना है? फिर म्यूट कर लिया तुम. बोलो. Mosquitoes. Name the disease that are being caused by biting of mosquitoes. मैम बोलो. इसे मच्छर ने नहीं काटा, इसे नहीं पता कौन से डिजीज होते हैं. किसको किसको मच्छर काटा है? जिया कितना खुश होके हंस रही है. जिया को काटा है मच्छर ने.
ओके चलो देखो, हैव अ लुक। अगर आपके पास पॉसिबल है, देखो कितने बच्चों ने हैंड रेज किया है कि व्हाट आर द डिजीज दैट आर बीइंग कॉज्ड बाय बाइटिंग ऑफ मस्कीटोज। ये लेसन में पढ़ा है हम लोगों ने। सॉरी, गरिमा बोली मैम आपकी खांसी की आवाज भी हम तक आ गई। ओके चलो, अनुष्का बहुत लवली स्माइल के साथ। हर्ष म्यूट करो, तुम्हारी तरफ कुछ बेच रहा है, यहां तक आवाज आ रही है। तो मस्कीटो के बाइट से कौन सा डिजीज होता है? वैष्णवी शर्मा, कल आप कहाँ थी मैडम? एक दिन बीच करके आते हैं आप क्लास में, है ना? जब मैम अनामिका मैम ने मैसेज देना होता है क्लास में कि एवरीबॉडी मस्ट बी देयर इन द साइंस क्लास, तो आप ज्वाइन करते हो, है कि नहीं वैष्णवी? Where were you yesterday? मैम वो कल नेटवर्क से नहीं ज्वाइन। मैम कल नेटवर्क इशू था। सबसे बेस्ट जवाब है अभी, सबसे बेस्ट एक्सक्यूज। एक आप लोगों ने पढ़ा है ना इंग्लिश में पोएम शायद, व्हेन यू आर लेट फॉर स्कूल बेस्ट एक्सक्यूज इज मैम जैम में थे, ट्रैफिक जैम। पढ़ा है ना, क्लास 4 में ही है शायद, है ना? कुछ ऐसा है। नो मैम पता नहीं, क्लास 3 या 4 में किसी पोएम में है। और अभी हम ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ते तो सबसे अच्छा एक्सक्यूज होता है मैम नेटवर्क इशू था मैम। अब आपको सवाल का जवाब नहीं आएगा तो भी आप ऐसे ही बोलते हो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। क्यों संस्कृति, सही है ना? जस्ट देखो उसके सर में हाथ देके बैठी है, कितनी बारी बुरी माँ है हम लोग की क्लास की, नानी माँ। सही ना? जब जवाब देने का मन नहीं करता, मैम म्यूट ही नहीं हो पा रहे थे, अनम्यूट। मैं बहुत कोशिश कर रहे थे कि अनम्यूट हो जाए लेकिन हो ही नहीं पाए थे। मैम नेटवर्क इशू है, आवाज ही नहीं आ रही है। ये सारे ऐसे एक्सक्यूजेस हैं जो हम लोग लगातार सुन रहे हैं। वैष्णवी कल से मैंने बता दिया है, जो भी क्लास में बच्चा लास्ट पीरियड में नहीं रहेगा, योर अटेंडेंस शैल नॉट बी मार्क्ड। आज का अटेंडेंस गोल, कल आपका अटेंडेंस नहीं बना, 0। आप अपने क्लास ही नहीं किए तो आपका अटेंडेंस नहीं बना। मुझे कैसे पता आप दूसरे क्लास में हो? आप तो मेरे क्लास में नहीं थे, तो अटेंडेंस इज 0। ठीक है ना? तो लास्ट पीरियड वाला इस क्लास को, साइंस क्लास का करना जरूरी है। ओके, द डिजीज इज बीइंग कॉज्ड बाय बाइटिंग ऑफ मस्कीटो। आर्या सिन्हा बोलो। यस मैम। बोलो मैम क्वेश्चन। अरे वाह, ये हम लोग का क्लास का राजा बेटा है। पूरा क्वेश्चन, पूरा रामायण मैंने पहले कह दिया, अब पूछ रहा है कि क्या है क्वेश्चन। यशस्वी क्वेश्चन बता दो एक बार आर्या सिन्हा। What are the diseases caused by a bite of mosquito? ओके, हमने घर के बगल में गड्ढे खोद दिए हैं, अब उसमें पानी जम गया है, मच्छरों ने उत्पात मचाया है। अब आपको कौन सा डिजीज हो सकता है उसकी बाइटिंग से, मैंने ये क्वेश्चन किया है। डेंगू, ओके, चिकनगुनिया और सबसे पहला नाम जो हर बच्चा बोलता है आर्या सिन्हा वही नहीं बोलता है। प्रसून बता दो। प्रसून बोलो। मैम मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। अच्छा, पहला तो ये मैम मलेरिया नहीं है, वो है मलेरिया। क्या है? तुम बता दो। मलेरिया। मलेरिया क्या? मलेरिया यार, उसका नाम ही बिगाड़ दे रहे हो। इतना सुंदर सा डिजीज का नाम है, खूबसूरत सा, है कि नहीं खूबसूरत? गरिमा, खूबसूरत नाम है ना? उसका नाम है मलेरिया। ओके, सो द डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट इज मस्कीटो, और उसके बाइट से होते हैं मलेरिया, चिकनगुनिया एंड डेंगू। तो क्या हम इन ऐसे डिजीज को होने दे सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? हम वाटर को स्टैग्नेट नहीं होने देंगे, बिकॉज ये गंदे पानी में ये डिजीजेस, ये इंसेक्ट्स जन्म लेते हैं। तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस, हम इनसे बचेंगे। तो पहला बताया मैंने कि वाटर को सेफ पीना है, क्लीन पीना है, और अगल बगल भी हमें साफ रखनी है। ये एक पॉइंट था इस लेसन का। और तीसरा है, हमने पानी तो साफ कर लिया,
हमने पानी तो प्योर कर लिया विद ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्योरिफिकेशंस, है ना, लेकिन हमने उसको स्टोर किया कैसे? एक गंदे से बॉटल में, एकदम बॉटल गंदा, और हमने फिल्टर से पानी लिया उस गंदे बॉटल में। स्टोरेज कैसा हो गया अंशुमन? हाउ इज द स्टोरेज? Ma'am, dirty. Dirty storage. Okay. So the water should be stored in a neat and clean utensils. पानी बहुत अच्छा से हमने स्टोर कर लिया, लेकिन अब मैं गई, गरिमा गई है अंशुमन के घर, अंशुमन, गरिमा गई है, आद्या गई है, संस्कृति गई है। अंशुमन ने क्या किया? 3 ग्लास पानी लिया और पानी सोचा ट्रे वे में क्या लेके जाना, फ्रेंड्स ही तो हैं। 5 उंगली उस पानी के ग्लासेस में डाले और उंगली से ग्लासेस को पकड़ा और लेके डाल दिया। वाटर था बहुत अच्छा और अच्छा बन गया। क्यों बन गया अच्छा ना? No, ma'am. नो मैम। क्या गलती किया अंशुमन ने? गरिमा क्या गलती किया? आद्या? मैम उसने पानी में उंगली डाल दी। ओके, उसने अपने हैंड्स डिप कर दिए, उसने पानी में फिंगर्स डिप कर दिए, है ना। तो पहला है सेफ वाटर, सेफ हैंडलिंग, हैंडलिंग सेफ होनी चाहिए। वी शुड नेवर डिप आवर हैंड्स, वी शुड नेवर डिप आवर फिंगर्स इनटू द वाटर व्हिच इज मेड फॉर ड्रिंकिंग। हमने पानी इतना अच्छा से प्यूरिफाई किया, उसमें अंशुमन ने पानी फेर दिया, उसमें उंगलियां डाल दी, तो वाटर क्या हो गया? क्या वो सही है? क्या वो सही है? No, ma'am. नो No, मैम। ma'am. अंशुमन, you should feel sorry about it. हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना? Okay. So how can you keep the water proper? So some of the ways for proper storage and safe handling of water is we should always keep water in clean and covered containers. पानी गर्म हुआ, पानी बॉईल किया गया, मामा ने पानी छान के रखा, उसके बाद उसे कवर करना आप भूल गए। मम्मी कवर करके आई, अपने कवर को खोल दिया, उसके लिड को हटा दिया, तो वाटर इज नो मोर क्लीन। हवा में मिट्टी होगी, धूल होगी, वो पानी में गिरेगा और पानी क्या हो गया? अगेन unclean. So we should always keep water in clean and covered utensils. ठीक है? We should never dip our hands, जो भी मैंने बताया, we should never dip our hands for the water stored for drinking purpose. पूर्णिमा रो रहे हैं, क्यों हो गया? Are you crying? मुझे नहीं दिया पानी अंशुमन ने, that is why she is crying. सबको दे दिया था, No, मुझे ma'am. दिया ही नहीं, मुझे अंशुमन ने पूछा ही नहीं। अंशुमन, तुमने पूर्णिमा को नहीं पूछा, she is crying. Ma'am, she has not come, that's why. Okay, सही बात है अंशुमन, he said the right answer कि मैम she has not come, गरिमा has come, आद्या भी आई है, संस्कृति भी आई थी, that is why मैंने उनको सर्व किया था। पूर्णिमा तो आई नहीं थी, इसलिए मैंने उसे सर्व नहीं किया। And ma'am, I can't parcel the water, otherwise And he it cannot parcel the water. Very good. Okay. Third is you should always use a ladle. आप देखे होंगे गांव वगैरह में या फिर शहरों में भी, अगर मटके में पानी रखे, you have a ladle, जिससे हम लोग दाल वाल सर्व करते हैं ना, वैसे ही थोड़ी सी लंबी सी होती है, it has got a ladle. वो ladle में you can keep ladle को use करके you can take out water from the containers. And you should never drink water that is stored for many days. बहुत दिन से स्टोर किया हुआ पानी को भी हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी में भी कीड़े वीड़े लग जाते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेसन। अब पूछते हैं फटाफट क्वेश्चंस, ठीक है? हम लोग क्वेश्चन पूछ ही रहे थे बीच बीच में, लेकिन फिर से एक बार क्वेश्चन पूछते हैं। आयांश, तुमसे शिकायत है, तुम जैसा क्वेश्चन का जवाब दो। हाँ, यस मैम, बहुत अच्छे बच्चे की तरह यस मैम बोल रहा है। चलो आयांश बोलो, व्हाई शुड वाटर बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग? Why should water be purified before drinking? जल्दी बोलो, हमारे पास समय नहीं है, नहीं आता आगे बढ़ाए बोलेंगे किसी को। अनुष्का बोलो, why should water be purified before drinking? बोलो अनुष्का, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका लिप मूवमेंट केवल है, आवाज नहीं आ रही है। अलीशा आनंद, give this answer. Why should water be purified before drinking? Ma'am, because it contains germs. ऐसा आंसर नहीं लिखा है मैंने,
Nitin Kumar, give the answer. Why should water be purified before drinking? Water is purified because before drinking because it contains dust and germs. फिर से बोलो बच्चे, फिर से बोलो. Water should be purified before drinking because it contains dust and germs. Water should be purified before drinking because if if we drink the unpurified water, it may contains dust and germs and we may fall sick. चलो म्यूट करो अपने आप को. गरिमा, why should we not allow water to stagnate around our house? Ma'am, because Again you are starting with because. अभी मैंने मना किया. Why should we not allow water to stagnate around our house? if we will allow water to stagnate around our house, then mosquitoes will breed over it and give their eggs, and then diseases will. We should not allow water to stagnate near our house because it becomes a breeding place of mosquitoes, which causes diseases like malaria, dengue, chikungunya, etc. है ना? Stagnant water is the breeding place. Stagnant water जो है वो breeding place है mosquitoes का. किसकी तरफ से खटर पटर आवाज आ रही है? कोई unmuted है तो mute करो अपने आप को जल्दी. Next. कोई unmuted है तो mute कीजिए जल्दी से. Somebody is unmuted. कौन है देखो? अनुष्का unmute करो. जब पूछा जाता है जवाब नहीं देते हो, अभी बात हो रही है. Next, Sonakshi, unmute करो. State 2 ways that can be used to prevent breeding of mosquitoes in our room coolers. अगर रूम कूलर में पानी है तो कैसे उसको बचाएंगे ताकि उसमें मस्कीटोज ब्रीड ना कर जाए? बोलो सोनाक्षी. पूर्णिमा बोलो. State 2 ways that can be used to prevent the breeding of mosquitoes in room coolers. Change room cooler water after 2 and 3 days. Okay. Add 2 spoon kerosene in room coolers. Okay. Now the question is, say 2 ways that can be used to prevent breeding of mosquitoes in room coolers. Room coolers में भी पानी, ठहरा हुआ पानी है, stagnant water ही है, तो इसमें भी mosquitoes breed कर सकते हैं. तो क्या 2 तरीका है जिससे कि यहाँ पे mosquito की breeding ना हो? What are the 2 ways that can be used? क्या हम use कर सकते हैं so that there is a prevention of mosquito breeding in the room coolers? Firstly, we'll not let the water be stagnant over there. हम वहां stagnant होने ही नहीं देंगे. After every 2 to 3 days, we'll change the water. हम 1 से 2 दिन में water को change कर देंगे. हम water को फेंक देंगे और दूसरा पानी डालेंगे. दूसरा method है, we'll add 2 to 3 tablespoons of kerosene oil into it. हम kerosene oil डालेंगे. क्या होता है जब हम kerosene oil डालते हैं, oil पता होता है आपको, oil float on the water. जब ऑयल फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर तो अगर उसमें कोई एग होंगे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो ऐसे ही मर जाएंगे या फिर ऑयल के ऊपर ये बैठ नहीं पाएंगे. ओके, दीज आर द 2 रीजंस. हम इस तरह से प्रिवेंट करेंगे रूम कूलर्स में मस्कीटो ब्रीडिंग को. ओके, how does the boiling help in making water safe for drinking? How does boiling help in making water safe for drinking? Anant Kumar Rai, are you there? Anant, कहाँ चला गया? Yes, बोलो. कैसे boiling safe है? How will you make water safe for drinking by boiling it? Boiling make the water safe for drinking because boiling kills the germs present in water which cause many diseases. Very good. Yes.
We can make the water fit for drinking by boiling it, because by boiling we kill the germs present into it. Very good. Next. अमृता अनम्यूट करो, अमृता अनम्यूट करो. आपका वीडियो भी ऑफ है. वेरी बैड. आप वीडियो ऑफ करके क्लास लेते बैठ रहे हैं, ऐसा क्यों? चलो जवाब दो. Why is traditional method of filtration not completely sufficient for making the water fit for drinking? अमृता, are you there? आप क्लास के बाहर निकल के. वेरी गुड, ये अच्छा तरीका है. Kumari Ashni, give this answer. Kumari Ashni, why is traditional method of filtration not completely suitable for making the water fit for drinking? Kumari Ashni, unmute नहीं कर पा रहे. अच्छा, okay. श्रेया राज बोलो. श्रेया, unmute करो, बोलो. नहीं आता, सिंपली से कि मैम नॉट लर्न, तो हम आगे बढ़ेंगे किसी और के पास. अनम्यूट करो. शी इज नॉट. हाँ बोलो. फिर म्यूट कर लिया अपने आप. यही मेन प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ. यू स्टार्ट प्लेइंग विद द क्लास. जब आपके पास आंसर नहीं आ रहा है, यू कैन से सो दैट वी डोंट वेस्ट द टाइम. तनीषा, गिव दिस आंसर. Why is traditional method of filtration? अभी मैंने जवाब भी दिया इसका, फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है. Why is the traditional method of filtration not completely sufficient for making the water fit for drinking? Ma'am, it बोलो. is not fit for drinking because it don't kill germs present in it. Okay, traditional method of filtration is not completely suitable for making the water fit for drinking because it only removes the dust, not kills the germs present in it. Okay, चलो एक चीज मैं देख ली कि आज की क्लास में बच्चों का प्रिपरेशन क्वेश्चन आंसर्स में नहीं है बहुत अच्छे से. सो आज का होमवर्क मैं कल फिर रिवीजन करूंगी इसी लेसन को. तो आज का होमवर्क है लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन. सारे क्वेश्चन आंसर को लर्न करो और कल हम ओरल टेस्ट लेंगे. एक एक बच्चे से पूछेंगे जो भी क्लास में रहेगा. ओके, ठीक है. रैंडमली पूछेंगे, नो रेजिंग ऑफ हैंड्स. ठीक है, चलो.